Hi guys, we're live right now. We're just waiting for Rohan to join in. This is going to be a workshop about type 1.5 diabetes and the myths associated with it, which me, Nishtha, and Rohan, both of us who've had type 1 diabetes or LADA, will be taking you through. So just waiting for Rohan to join in a couple of minutes, and we can take it from there. In the meanwhile, if you're watching us live on Facebook already, you can start dropping in your questions, any comments that you may have about LADA or type 1.5 diabetes, including, I had no idea that this type of diabetes even exists. Please feel free to add all your comments. We'll be looking at all of them and we'll be trying to answer them to the best of our abilities. So just give us a couple of minutes before we start. Hi, Nupur. So good to see you here as usual all the time. So while we are still waiting for Rohan, I think he's having some sort of technical difficulties. Let me tell you a little bit about me and my tryst with type 1.5 diabetes, which I will go into details about a little later with Rohan when we talk about it. But I feel very privileged to know that such a thing existed through research and being able to Google when I was still trying to come to terms with like my condition and my diagnosis and stuff like that. I did not get a type 1.5 diagnosis very early on. I got it years after I was misdiagnosed as type 2. And it's a very incredibly interesting story that again I'll detail in a little later. But I went to my then doctor asking about type 1.5 diabetes that I had read upon. I had tried to understand by myself, and I had tried to figure out what exactly is happening, and whether or not there are other types of diabetes that exist in the world. And the amount of research that I did for different types of diabetes was absolutely crazy. You won't believe the kind of wide umbrella that diabetes really consists of. And in the meanwhile, while still having to go through the rigmaroles and everything about my diagnosis, learning how to administer insulin, learning how to carb count, how to deal with hypos, and all of that stuff, I was still trying to figure out what the myths are about type 1.5 diabetes myself and try to bust them. So I'm sure you guys will have like a lot of questions about it as well. So yeah, please feel free to drop in, and I can see about like 8 people alive. Just feel free to drop in and say hi. First of all, drop in any comments, drop in any questions, and I'll try to take them before Rohan comes in. Rohan is a far more senior LADA player in this field, so he will have a lot more tips to give you and tell you about. But I'll try my best to answer them as well. Any second now. Hi, Rohan. Hi everyone. Sorry I got a little late. Am I audible? Yes, you are. Yeah. Hey So, everyone, how are you doing? so Rohan, I've done like a bit of an intro to introduce what we'll be talking about, but obviously, we've not gotten to go into the details of what LADA is, type 1.5 diabetes is. So, why don't we start from there? I think. Got it.
So thanks everyone for joining on another workshop on Sunday 5 p.m. for Blue Circle Diabetes. Today we'll be talking about LADA. LADA, latent autoimmune disease in adults. इसको टाइप 1.5 भी बोलते हैं। और आज की वर्कशॉप हम कोशिश करेंगे दोनों हिंदी और इंग्लिश में बात करें। और लाडा बेसिकली हम अगले आधे पौने घंटे में हम बात करेंगे कि लाडा क्या है, क्या कारण है लाडा होने की, कैसे आप उसको मैनेज करते हैं और क्या आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कैसे आप पता लगाएंगे लाडा के बारे में। सो थैंक्स एवरीवन, आई कैन सी सम पीपल जॉइनिंग एंड आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट्स में डाल सकते हैं एंड विल बी टेकिंग दोस क्वेश्चंस एज वेल। And yeah, so starting off with the diagnosis part, right? Uh, when did you get to know, Nishtha, कि आपको diabetes है first of all, and then later on कब पता लगा? You mentioned a little bit of it. I could hear like, Yeah, but आपको yeah. symptoms क्या है diabetes के शुरू में? तो बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन था बिकॉज मेरे डैड को टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे डायबिटीज़ कंप्लीटली अनअवेयर थी मैं। एंड ही इज़ नॉट वेरी वेल वर्स्ड, उनको इंटरनेट चलाना इतना आता नहीं है। तो मुझे हमेशा पूछते थे जो भी सवाल वगैरह होते थे जो डॉक्टर के पास जाके नहीं पूछ सकते हो। इंडिया में क्या हो जाता है, डॉक्टर्स के पास जाना बेसिकली आपके पास 10 मिनट का विंडो होता है, आपके पास 2-2 3-3 महीने वर्थ के क्वेश्चंस होते हैं एंड आंसर करने में टाइम लग जाता है। सो यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस। तो वो मुझसे पूछते थे इंटरनेट पे जाकर, मुझे ये चीज़ के बारे में पता करके बताओ, वो चीज़ के बारे में पता करके बताओ। एंड अराउंड वो टाइम पे मेरे डैड को थोड़ा टाइप 2 का कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। ही वाज हैविंग 6 नर्व पैल्सी जो आँख को अफेक्ट करती है एंड एक आँख ही वाज अनएबल टू मूव फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स। तो एक ही आँख मूव कर पा रहे थे एंड आई पैच लगा हुआ था। और वो टाइम पे मैं बहुत ज़ोरों शोरों से ढूँढ रही थी चीज़ें इंटरनेट पे। जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी टाइम से मुझे एक्सेसिव थर्स्ट हो रही है, एक्सेसिव यूरिनेशन जो ऑब्वियसली एक्सेसिव थर्स्ट वगैरह के साथ आता है। और मेरा सबसे बड़ा सिम्पटम था दैट मैंने कुछ नहीं करते हुए ऑलमोस्ट 10 केजीज़ मेरी घट गई थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं बहुत ज़्यादा पानी पी रही हूँ, बहुत स्ट्रेसफुल जॉब में हूँ। मैं सिर्फ अराउंड 22 साल की थी, अपने नए फर्स्ट जॉब में थी। तो मुझे लगा शायद उसके वजह से हो रहा है। एंड एक एक चीज़ जो फाइनल चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई कि मुझे मेरी बॉडी को कॉन्स्टेंटली मीठी चीज़ें क्रेव हो रही थी। लाइक आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। मैं सुपरमार्केट जाकर, मेरे ऑफिस के बाजू में सुपरमार्केट हुआ करता था, मैं 3-4 चॉकलेट्स एंड जैम्स एंड ये सब उठाकर एक साथ खा जाती थी सारा का सारा। तो वो चीज़ मुझे फाइनली एक दिन रियलाइज़ हुआ कि ये जो है ये ठीक नहीं है। एंड जो एटलीस्ट 3, 4 और 5 सिम्टम्स आई एम ऑलरेडी शोइंग, फैमिली हिस्ट्री भी है, मुझे चेक कर लेना चाहिए। आई वेंट टू माई डैड जिनके पास ग्लूकोमीटर घर पे ही था एंड आई वॉज इन लाइक हाई 300s एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बस उसके बाद डॉक्टर ट्रिप्स वगैरह चल रहे थे। बट एज यूजुअल जो 20s में आप डायग्नोज हो जाते हो तो जो चीज़ होती है वही हुई मेरे साथ। मुझे कहा गया मुझे टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं एंड So ज़्यादा we'll टेस्ट come नहीं to किए। the हाँ, मिसडायग्नोसिस पे आते हैं। उससे पहले जो भी करेक्ट। लोग सुन रहे हैं एक दिन, आप कमेंट्स में बताना चाहेंगे कि कितनी प्रकार की डायबिटीज होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायबिटीज आर देयर। सो फील फ्री टू मेंशन दैट इन द कमेंट्स। टोटल कितने टाइप की आपने सुनी है या कितने टाइप की होती हैं। लाइक निष्ठा मेंशन, आई थिंक आई वाज आल्सो इन माय, आई थिंक आई वाज 19 व्हेन मेरे को सेम सिम्टम्स आने लग गए। लाइक आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, आई फेल्ट अ लॉट ऑफ थर्स्ट एंड ऑल, एंड मेरा आई गॉट एन एक्सीडेंट। तो मैं जब हॉस्पिटल में जब मैं गया था उसका पट्टी वट्टी कराने, तो दे चेक माई शुगर ऑल्सो वहाँ पर। उस टाइम पर रूटीन चेक था, तो वहाँ पर उनको देखा कि इसकी मेरी शुगर तो ऑलरेडी 400 कुछ में थी, राइट। तो देन आई थिंक दे आस्क्ड मी टू गो टू एन डायबिटोलॉजिस्ट उस टाइम पर। सो या, सो व्हाट वी कैन सी फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस इज दैट हम लोग को दोनों को सिम्टम्स आने शुरू हुए, राइट, एंड वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। एंड जो इनिशियल वेट लॉस यस। होता है, यू डोंट थिंक दैट कि ये डायबिटीज की वजह से, यू थिंक कि ये स्ट्रेस है या फिर कुछ और रीजन है, राइट। यस। एंड जब वो कंटिन्यू होता रहता है, देन यू फील लाइक अच्छा कुछ और है, लाइक वी नीड टू डू समथिंग एल्स। तो बहुत जरूरी है करेक्ट। इन सिम्टम्स की अवेयरनेस सबको।
ताकि वो पता लगा सके अच्छा व्हाट इज इफ एनीथिंग यू फील दैट एक ड्रास्टिक सडन वेट लॉस या वेट गेन हो रहा है या यू कैन सी सम सिम्टम्स, तो आसपास भी किसी को अगर आप देखते हैं कि सिम्टम्स हो तो बहुत जरूरी है जाके आप पहले चेक कराएं डायबिटीज का. So, Nishtha, your first interaction with doctor, right? How did it go? What did he tell you? It was, I think, one of the most scariest experiences of my life था, because ऐसे ही लग रहा था अब पूरी की पूरी जिंदगी चेंज हो जानी है. एंड ही सेड कि थोड़े टेस्ट वगैरह लिख के देता हूँ, करवा लीजिए. एंड जब फॉलो अप वगैरह करने गए तो बस इट वाज फाइनल. ही सेड कि ये जो शुगर रिपोर्ट है, ये जो भी आपके रिपोर्ट्स हैं, इट्स क्लियर आपको डायबिटीज है. एंड या लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑन ओरल मेडिकेशन. और मैं वो टाइम पे ऑब्वियसली मुझे इतना भी नहीं पता था डायबिटीज के बारे में. मैं जस्ट कह दिया ओके चलो लेट्स डू दिस. ओवरनाइट मैंने अपना डाइट चेंज कर दिया, ओवरनाइट शुगर छोड़ दिया. बस इट वाज जस्ट लाइक ओरल मेडिकेशन फॉलो लेकर फॉलो करना था. बट इट वाज अ वेरी स्कैरी एक्सपीरियंस. और मुझे, जैसे मैंने पहले कहा, डॉक्टर्स के साथ 10 मिनट से ज़्यादा मिलता नहीं है टाइम. तो जितने भी सवाल वगैरह थे, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं अगर वो टाइम पे ज़्यादा पूछ सकती तो मुझे बेटर अंडरस्टैंडिंग होती अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज. एक टाइप 1.5 नाम की चीज़ होती है, वो भी थोड़ा बहुत शायद समझ में आया होता मुझे. बट ठीक है, आई गेस इट वाजंट मेंट टू बी. You were told you were type 2 as well immediately, right? Correct. Right. So, what we have seen and what we have experienced. Hi everyone who is joining the call. Hi Ronald. तो हमने क्या एक्सपीरियंस किया था कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट, ही सीज दैट अच्छा यू आर नॉट अ चाइल्ड एंड यू आर इन योर एडल्टहुड, राइट, सो ही इमीडिएटली डायग्नोज कि अच्छा ये तो टाइप 2 का है, क्लासिक केस, राइट. Correct. एंड फर्स्ट थिंग इज दे गिव यू सम मेडिसिन, राइट, दे गिव यू मेटफॉर्मिन या कुछ भी है, स्टार्टिंग लोएस्ट डोज से आपको स्टार्ट करते हैं. सो दे गिव दैट टू मी एंड मेरे को ज्यादा डाइट वाइट का भी कुछ बताया नहीं, लाइक हाउ डू आई मैनेज माय डाइट. ही जस्ट सेड लाइक टेक दिस पिल and yeah. So I did that for 6 months and he said like do it for 3-4 months, get your HbA1c done and then come back. तो मैं फिर से वो गोली खाया, मैं 3-4 महीने बाद फिर गया. देन मेरा आई थिंक HbA1c कुछ 7.5 था, वो बढ़ के 8 हो गया था when I went after 6 months. So right, so I was like कि ये तो बढ़ रहा है. तो he's like you must not be following the diet properly, आपने गोली सही से नहीं खाई होगी. And he increased my dosage. तो 500 से he made it 1000. So during the next 2 years मेरी डोज 500 से लेके 4000 पहुंच गई. एंड द डॉक्टर डिडंट सजेस्ट मी टू डू एनी सी पेप्टाइड या कुछ भी. तो मैं मतलब आई थिंक I'll talk about the DK part when I went into DK, but Nishtha, do you want to add anything to your diagnosis and your initial interactions with the doctor? See, I think the only thing is same आपके जैसे. आई थिंक बिकॉज इतना अवेयरनेस नहीं है लाडा के बारे में, कि एक सर्टेन अमाउंट का आपकी गलती होगी, आपने कुछ सही नहीं किया होगा. वो वाला सिचुएशन मेरे साथ भी हुआ और मेरे को लगता है बहुत सारे लाडास के साथ होता है कि नो मैटर आप कितना भी डाइट कर लो, नो मैटर आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, नो मैटर कितना भी आप हाई मेडिकेशन ओरल फॉलो कर लो, after a point of time your body will not give you the same response that it gives to type 2 diabetics with the same medication. तो ये प्रॉब्लम तो होनी है. बट आई थिंक वी शुड गेट इनटू the stigma part of it and a little Correct. later, And because ये just काफी yeah. Just want to give shout out to Murnal. She has been diagnosed with LADA since the last 8 months. उनका HbA1c 15.3 था. And Murnal, how is it going? How is your current HbA1c? और आपका कैसा आपका experience रहा? Please mention in the chat. Like, did you experience the same thing? And yeah, how did you know that you got LADA? Yeah. Go ahead, Nishta. Yeah. यार दैट्स इट कि स्टिग्मा में हम थोड़ा बात करते हैं बाद में, बट आप पहले करेक्ट. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो व्हेन जब मेरे को मेटफॉर्मिन का डोज खत्म हो गया कि भाई इससे ज्यादा इसको मेटफॉर्मिन दे नहीं सकते, देन ही सेड यू गेट ऑन टू लैंटस. तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मतलब शॉकिंग था कि लाइक आई हैव बीन फॉलोइंग व्हाट द डॉक्टर हैज बीन टेलिंग मी एंड अब मेरे को ना एक दिन में एक इंजेक्शन भी लेना है. देन इज लाइक ये एक ही इंजेक्शन है एंड ऑल दैट. एंड माय पेरेंट्स वर वेरी एंटी इंसुलिन. मतलब सब लोग बोल रहे थे अरे इंसुलिन पे मत आओ, इंसुलिन पे मत आओ, रिवर्सल कर लो. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ लाडा, राइट, बहुत सारे लोग रिवर्सल के बारे में बात कर रहे थे कि आप
ये करो, आप वो करो, आप करेले का जूस लो, आप ये खाओ वो खाओ. दैट वाज हैपनिंग अ लॉट ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम. एंड जब वो इंसुलिन लगने लगा तो और भी बढ़ गया कि आपका तो ठीक नहीं हो रहा है, यू हैव टू गो टू सम बाबा एंड ऑल. एंड मेरे को मेरे पेरेंट्स वर लाइक फोर्सिंग मी टू गो टू सम बाबा यहीं पर दिल्ली के पास में, जो कुछ आपकी इंसुलिन बंद करा देते हैं 2 दिन में. Yeah, so just want to say shout out to Suraj. I think he was also diagnosed LADA 3 years back, which HbA1c 10, अभी 7 है. Great to know, Suraj. Share your experience like in the chat कि आपको कैसा diagnose किया LADA आपने, and how was your experience पिछले 3 साल का. Yeah. So yeah, then I went on to Lantus, and then Lantus लगाने के बाद भी मेरा कुछ HbA1c कम नहीं हुआ था, and then I went into a DKA. एंड डीके के बाद डॉक्टर गेव आस्क्ड मी टू यूज एक्ट्रापेड. ठीक है, तो उसने एक्ट्रापेड ऐड कर दी थी जब मैं हॉस्पिटल से निकला. तो मैंने 3-4 महीने एक्ट्रापेड भी लगाई. मैं उसके 4 महीने बाद अगेन आई वेंट इनटू डीके, क्योंकि मैं सब कुछ खा रहा था उस टाइम पे, मतलब रोटी चावल सब्जी, आई वाज ईटिंग एवरीथिंग. एंड मेरी शुगर्स कंट्रोल नहीं आ रही थी, ना मैं चेक कर रहा था उतना. एंड Ron, sorry to interrupt. Actrapid mixed है या fast acting insulin है? रेगुलर इंसुलिन है. Right. Okay. So before every meal you were having Actrapid. Correct. And it takes a long time to act and all. But when I again went into DKA, और जब फिर मेरे को C peptide तब बताया, जब when I went into a new hospital, मैं वहाँ गया तो first time like after getting diagnosed with LADA, after I would say 3.5 years, I was told to get C peptide done after getting diagnosed with diabetes. So how was it with you, Nishta? When were you asked to get your C peptide done? That's the funny part. मेरे डायग्नोसिस का मुझे बोला ही नहीं गया था सी पेप्टाइड करने के लिए. बट अबाउट 6-7 साल हो गए थे मेरे टाइप 2 डायग्नोसिस को. एंड मैं चाहे जो कर लूँ, मेरे शुगर्स लेवल में नहीं आ रहे थे. और मुझे नोवोमिक्स दिन में एक बार यूज करने को कहा, मिक्स इंसुलिन यूज करने को कहा गया था. बट उसके बावजूद आई वॉज इन 300s ऑल द टाइम लॉन्ग. एक टाइम के बाद तो मैंने ना रेगुलरली चेक करना छोड़ दिया था मेरे शुगर लेवल्स को. क्योंकि मुझे ऐसा लगता था क्या फायदा है कि मैं कुछ भी कर लूं, बस उतना ही हाई आना है. मे बी शायद थोड़ा और एक्सरसाइज कर लूं, मे बी शायद थोड़ा और डाइट कंट्रोल कर लूं, बट उसके एक पॉइंट के बाद नहीं हो रहा था. लकीली आई थिंक मैंने मेरे डॉक्टर को पूछा अबाउट टाइप 1.5 डायबिटीज, एंड ही वाज नॉट ऑन बोर्ड विद इट. ही सेड आई डोंट थिंक सो, मुझे तो आपका टाइप 2 ही लग रहा है अभी तक तो. एंड मैं वही सोच रही थी आप श्योर कैसे हो सकते हो. तो ही वाज अ डायबिटोलॉजिस्ट, एंड आई सेड कि लाइफ में पहली बार सेकंड ओपिनियन लेने का टाइम आ गया है. आई वेंट सर्चिंग फॉर एन एंडो, जिनको इट वाज लॉकडाउन के टाइम पे, जिनको मैं लाइफ में मिली भी नहीं थी कभी, मैंने सिर्फ ऑनलाइन बात की थी. एंड जब मैंने एंडो को बताया कि मुझे डाउट हो रहा है कि मुझे शायद लाडा है, बिकॉज मैंने जितना रिसर्च किया है, जितना पढ़ा है, मेरे सिम्टम्स टाइप 2 के साथ कंसिस्टेंट नहीं लग रहे हैं, टाइप 1.5 के साथ ज़्यादा कंसिस्टेंट लग रहे हैं. और उन्होंने कहा आपका जीएडी एंटीबॉडी टेस्ट हुआ है क्या? उन्होंने नहीं हुआ है. तो इसलिए पहले आप और कुछ भी बात करो, उसके पहले आप जाकर जीएडी एंटीबॉडी टेस्ट करा लो. And that was the moment where she said your doubts are correct and you have LADA. And in fact C peptide test तो मैंने अभी recently कराया, तो मेरी एंडो कह रही थी कि कोई पॉइंट ही नहीं है कराने का, तो मैंने ऐसे शौक के लिए करा दिया था. मैं लाइफ में उसके पहले या उसके बाद कभी C peptide टेस्ट कराया ही नहीं है. बट आई थिंक मैं लकी हो गई कि मैंने मेरा सेकेंड ओपिनियन जिस टाइम पे लेना चूज किया. आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर माय लाइफ, हेल्थ, एवरीथिंग. सो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है व्हेन आई टॉक टू अदर पीपल लिविंग विद डायबिटीज आल्सो, कि हम लोग ना इतना जल्दी चेंज नहीं करते हैं डॉक्टर. थोड़ा हम हेजिस्टेंट होते हैं टू गेट अ सेकंड ओपिनियन, राइट. एंड जो लोग सुन रहे हैं प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स कि ऐसा क्यों है, अगर आपने एक्सपीरियंस करा है कि व्हाई आर पीपल हेजिस्टेंट टू टेक अ सेकंड ओपिनियन क्विकली. क्योंकि मेरे को भी उस टाइम पे सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए था. आई वाज लाइक कि नहीं, गोली तो खा रहा हूँ, ठीक हो जाएगा. लाइक I went with that, right? And so I think Mrinal here is saying like she got lucky by choosing a good doctor. Correct. जो आपका initial diagnosis होता है, I think that is very very important to manage LADA. That make or break हो जाता है initial diagnosis का for a very long time. And जब आप एक routine में set हो जाते हो, तो it gets very difficult to change your doctor.
मेरे साथ भी यही हुआ था, क्योंकि मेरे फैमिली में डायबिटीज़ का हिस्ट्री है। मेरे डैड और मेरे डैड की मॉम, यानी कि मेरी दादी को भी डायबिटीज़ था। वो दोनों यही डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो मेरे लिए डॉक्टर चेंज करना और सेकंड ओपिनियन लेना थोड़ा फैमिली इशू हो गया था कि लाइक अच्छा अरे खासा तो सेम चेंज हो लाइक रहा है। this was a doctor which my father has suggested, so he's also T2. तो मेरे लिए भी डॉक्टर चेंज करना मुश्किल हो गया था बिकॉज ही वाज अ फैमिली डॉक्टर, राइट? सो आई थिंक दिस इज अनदर लर्निंग, राइट? इवन दो आपका फैमिली डॉक्टर है, बट इफ यू आर नॉट सीइंग द रिजल्ट्स क्विकली, देन देन यू यू हैव टू चेंज योर डॉक्टर और टेक अ सेकंड ओपिनियन, या राइट? अक्षय इज आस्किंग आपका जीएडी 65 रिजल्ट क्या आया था? अक्षय, आई थिंक वो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ वो जो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है ना, मेरा तो 2000 या कुछ आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट एक बार वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है तो माय डॉक्टर सेज दैट इट्स अ गिवन। उसके बाद you're just positive or negative, it doesn't matter what the number says after a point of time. One is GAD antibody test, another is C-peptide test. So C-peptide test tells you how much insulin your pancreas is making. तो मेरा तो 0.00 था। आई थिंक आइडियली कुछ 0.5 या 1 से कुछ रेंज होती है, माइन वो 0.0 समथिंग, तो मतलब बिल्कुल भी इंसुलिन बन नहीं रहा था। Right. Yeah. So, I mean, अक्षय C-peptide आपने test and yeah. या Akshay गो says अहेड। उनका 456 आया है. So yeah, I mean, I think if it's above a certain limit तो बस positive है फिर. But yeah, आप अपना C-peptide definitely एक बार check कर लीजिए, so you have like a yardstick about it. Um, yeah, I mean, I think बहुत कम लोग होते हैं जिनको पहले टाइम में ही लाडा डायग्नोसिस मिल जाता है। रोहन, डू यू थिंक ये जीएडी एंटीबॉडी और सी पेप्टाइड ना टेस्ट करने की वजह से होता है, या डू यू थिंक ये इसकी वजह से होता है कि डॉक्टर्स चेक करना ही नहीं चाहते बिकॉज आप 20s में 30s में डायग्नोस हो जाते हो तो अज्यूम कर लेते हैं? Correct. So I think anyone who is getting diagnosed below 40, right? 40, 45 या 50 से जो कम diagnose हो रहा है, I think, और उनका अगर 6 months में आपको results नहीं मिल रहे, 1 year 6 months में metformin के साथ और insulin के साथ, तो then it's common sense that you get your LADA and 1.5 done. I think it's lack of awareness among doctors. जिसे आपको अच्छा डॉक्टर मिल गया तो आपकी किस्मत है जिसको पता है इस बारे में, राइट? बिकॉज काफी पुरानी मेडिकल बुक्स में ये सब सिखाया नहीं जाता है। टॉकिंग टू अ डॉक्टर, मतलब जिसको जो भी पढ़ाई कर रहे हैं 4th year में, इज सून पास आउट, एंड ही वाज टेलिंग कि हमको बताया ही नहीं इस चीज के बारे में, वी वर जस्ट टोल्ड अबाउट बेसिक स्टफ, राइट? सो डॉक्टर्स हैव टू गो आउट एंड बी मोर अवेयर, एंड खुद से अपनी नॉलेज बढ़ानी होती है। लाइक आई वर्क इन आईटी सेक्टर, राइट? मैं अपनी डोमेन नॉलेज खुद ही बढ़ा रहा हूँ, राइट? So some करेक्ट। doctors do it, some don't do it, some keep updated. तो ये difference आ जाता है, and yeah, I think the main cause is awareness, right? That awareness नहीं है इसके बारे में उतना। Correct. Runal says probably these tests are expensive. That's why most people avoid doing these tests. Actually, क्या हो That जाता is है? I true, think right? I think it's हाँ, one function, but जब डायबिटीज डायग्नोज होता है तो साथ में बहुत सारे टेस्ट वैसे भी करने पड़ते हैं। तो वो टाइम पे आई थिंक बहुत कम लोग ऐसे सोचते हैं कि यू नो बहुत पैसे लग जाएंगे। एक 10 लाइक 1,000 रुपए टाइप्स ही ज्यादा लगते हैं मोस्टली, and especially GAD test is, I know it's a little more expensive, but C peptide correct, वगैरह correct. यूज करना मेरे would be ideal माय at that डॉक्टर, point. जब मैं दूसरी बार जब मैं भैया डीके से निकल रहा था, तो मेरे डॉक्टर वाज सजेस्टिंग मी टू डू, एंड ही वाज आस्किंग मी कि मैं ये टेस्ट लिख दूं, ये महंगा टेस्ट है। मैंने कहा लिख दो प्लीज लिख दो। ये सारे तो लिख दो दिस इज टाइम पे टू, तो। हाँ, बिकॉज 10-15 हज़ार रुपये आप दोनों टेस्ट कराओगे तो आपके लग सकते हैं। एक टेस्ट कराओगे तो आई थिंक 5-6 हज़ार में हो जाएगा आज के टाइम में, राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक टेस्ट तो दोनों में से कराएं, उससे भी आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। या कि अगर आपको जीएडी टेस्ट थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है तो सी पेप्टाइड से एटलीस्ट आपको कोई आइडिया होगा कि आपकी बॉडी कितना इंसुलिन अब बना रही है, Correct. रिजर्वायर में कितना बचा है आपके पास। तो अगर फिर तब जरूरत लगे तो डेफिनेटली जीएडी एक बार करा के सेटिस्फैक्शन लेना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्या है, सही डायग्नोसिस से ही आपका सही ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। अगर आपका डायग्नोसिस ही कच्चा पक्का रहेगा, अप इन द एयर रहेगा, तो यू डोंट नो व्हाट टू डू Correct. एंड हाउ टू गो अहेड। क्योंकि अगर Correct. मेरा डायग्नोसिस सही नहीं होता तो शायद मैं मिक्स कार्ड पे ही रहती काफी टाइम के लिए, और वही सिस्टम चलता रहता कि शुगर हाई है, चेक नहीं कर रहे हैं, चेक नहीं कर रहे हैं, और शायद डीके हो जाता उसके बाद, बिकॉज दैट्स द Correct. नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दैट। सो या निष्ठा,
आपके पास आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ कि कोई रिवर्सल के लिए आया एंड दे वर लाइक ट्राइंग टू से कि अच्छा ये ले लो वो ले लो, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, ट्राई टू डू समथिंग? एक्चुअली मैं मेरे साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो मोस्टली पॉजिटिव ही हुए हैं कि मेरा रिपोर्ट एक बार आई थिंक क्या हो जाता है, पेरेंट्स को लगता है सबसे ज़्यादा कि अब तक तो मतलब फुल्ली एडल्ट्स भी नहीं हुए होते हैं जब यूजुअली लाडा डायग्नोसिस हो जाता है मोस्टली। लाइक आई वाज ओनली 21 22 एट दैट या पॉइंट ऑफ टाइम। टीनेज, या तो मैं बेसिकली या 19 20। जस्ट अबाउट जस्ट आउटसाइड ऑफ टीनेज एंड अपने पैरों पे भी खड़े नहीं हुए अभी तक पूरी तरह से टाइप्स। तो एटलीस्ट एट दैट पॉइंट मेरी मॉम को लगा शायद किसी होम्योपैथ के पास ले जाना चाहिए, रिवर्स करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एट वन पॉइंट मैं एक होम्योपैथ के पास भी गई थी एंड एक योगा इंस्ट्रक्टर जो बहुत वेल नोन है, एंड वेरी लकीली बोथ ऑफ देम इंस्टेड ऑफ टेलिंग मी दैट ये रिवर्स हो जाएगा, टोल्ड माय मदर कि ये रिवर्सल के चक्कर में आप मत पड़िए एंड मैनेजमेंट करना सीखिए बिकॉज दैट्स द वे फॉरवर्ड। जबकि तभी मेरा मिसडायग्नोसिस वैसे भी T2 हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि आप प्लीज रिवर्सल के चक्करों में पड़ोगे तो एक्स्ट्रा स्ट्रेस होगा एंड एक्स्ट्रा स्ट्रेस इज ऑब्वियसली नॉट good at this point of time. But yeah, so my experiences with this have touchwood been very nice, and वो मैं अपना privilege समझती हूँ और मैं दूसरों को try करती हूँ pass on करने का कि आप दूसरों I mean ये सब चक्करों में ना पड़ो तो बेटर होगा, क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो। आपको किसी ने रिवर्सल के लिए अप्रोच किया या रोहन? हाँ, मतलब मेरे तो बहुत लोग आए थे, मतलब रिश्तेदार आके बोल रहे थे, और कुछ आयुर्वेदा का मम्मी ने कुछ रेसिपी बता दिया था। देन एक बाबा भी थे जिनके पास मेरे को जाना था, बट आई मैं किसी तरह आई अवॉइडेड गोइंग टू दैट बाबा। लेकिन आई डिड लॉट ऑफ दिस होम रेमेडी स्टफ, राइट? जो भी हल्दी ले लो, एसीटी ले लो सुबह सुबह, राइट? कुछ पत्ते रात को पानी में डाल के पियो। तो लॉट ऑफ दिस स्टफ, राइट? आई गेस इट कम्स फ्रॉम लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन केम फ्रॉम व्हाट्सएप फॉरवर्ड, या कोई बहुत इधर उधर से आई थी वो इन्फॉर्मेशन। देयर वाज नो सोर्स ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन। जैसे माय फादर यूज्ड टू फॉरवर्ड मी व्हाट्सएप कि भाई ये खा ले वो खा ले, राइट? तो मेक श्योर दैट आप जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं इस टाइम पर, मेक श्योर दैट आप सोर्स चेक करें कि ये सोर्स कहाँ से आ रही है इन्फॉर्मेशन, एंड यू सी कि कितने लोगों को हेल्प हुआ है इससे। यू डू योर ओन रिसर्च लाइक निष्ठा डे, तो उससे काफी हेल्प मिलेगी आपको। Kajitan is saying that he got diagnosed with diabetes at age 37, initially misdiagnosed with type 2, got admitted in hospital twice due to DKA. तो सेम है काजितन, मेरे को भी 2 बार डीके हुआ। देन डॉक्टर ने गैट 65 कराया, एंड देन दैट कंफर्म दैट ही इज नॉट टाइप 2। या आपको लाडा हो सकता है। आप अपना करंटली ही इज ऑन एक्ट्रापिड एंड लैंटस। Does treatment differ much for LADA and type 1? So that's a great question, Kajitan. So we'll come to the treatment part now. That how does the treatment from LADA differ from type 1, right? तो type 1 में क्या होता है, आपकी insulin production becomes zero, right? LADA, what happens is that your insulin production is slowly coming down. So you have to manage that कि यू नीड सम पिल्स, क्योंकि आपकी जितनी इंसुलिन बन रही है, जैसे सपोज आपकी बॉडी में 40% इंसुलिन बन रही है, ठीक है? तो यू वांट टू मेक श्योर दैट 40% इज वर्किंग विद मेटफॉर्मिन, एंड जो 60% नहीं बन रही है दैट यू टेक फ्रॉम एक्सटर्नल इंजेक्शन। तो आप दोनों चीजें ले रहे हैं, पिल्स एंड इंजेक्शन। जैसे ही वो जितनी परसेंटेज कम ज्यादा होती है, यू हैव टू चेंज योर ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। जैसे पहले 80% बन रही है तो मैं सिर्फ लैंटस लूंगा, ठीक है, और गोली लूंगा। अगर प्रोडक्शन मेरी 40% पे आ गई तो मैं शायद एट्रापिड लूंगा या कोई और इंसुलिन लूंगा। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाडा टू अंडरस्टैंड हाउ मच इंसुलिन योर बॉडी इज मेकिंग, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जो ट्रीटमेंट दैट वी आर फॉलोइंग, राइट, my is not sync with how much insulin my body is making. So sometimes that also happens in LADA. Yeah, your comments, Nishta? या फॉर श्योर मेरे को ये चीज़ ना डायबिटीज ग्रुप पे भी हम लोग के 2-3 बार पूछा गया है कि आप ओरल पिल्स साथ में लेते हो क्या इंसुलिन के? एंड मैं लेती हूँ, मैं मेटफॉर्मिन लेती हूँ ब्रेकफास्ट के पहले, डिनर के पहले, एंड एक मेडिसिन है जो मैं रात को सोने के पहले लेती हूँ। एंड आई स्वेयर मैं 1-2 बार सोचा कि मैं बंद कर देती हूँ, वैसे इंसुलिन ले रही हूँ,
the difference that the taking the pill makes is so evident कि अगर जिस दिन मैंने नहीं लिया ना तो मेरे numbers में मुझे पता चल जाता है कि नहीं लिया हुआ है and पता है that your body is not okay with it. तो जब तक आपके डॉक्टर को लग रहा है कि इंसुलिन थोड़ा बन रहा है एंड यू स्टिल नीड टू ऑप्टिमाइज दैट, तो ये मेडिसिन जो है, पिल्स जो है, वो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए दिए गए हैं. तो यू शुड टेक इट, यू शुड नॉट completely stop it. So even sometimes type 1s also ask me about taking these pills for some sort of insulin resistance. तो मेरे साथ तो थोड़ा है insulin resistance का scene, इसीलिए I am also taking certain medication for that. But Rohan, now you are completely off oral pills, right? Yeah. Correct. So I think the first 5 years of my diagnosis, I was taking pills. जब मेरा C peptide 0 आ गया कि भाई insulin production तो 0 है, right? Then उसके बाद I went on to insulin, and उसके बाद I didn't, like doctor didn't suggest, and also I didn't feel the need to take oral pills. तो ये अलग-अलग stages हैं लाडा की. I think these stages can go for up to decades also. कि आप अगर अच्छे से मैनेज करें तो आप लाडा की स्टेज को खींच सकते हैं काफी टाइम तक ऑन पिल्स एंड ऑन उस पे. तो बट बेसिक चीज इज दैट यू मैनेज योर शुगर लेवल्स. जितना आपकी बॉडी के लेवल्स ऊपर नीचे होंगे, आपका HbA1c बढ़ेगा, उतनी ज्यादा आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होती रहेगी, जो टाइप 2 का फंडा है, राइट? टाइप 2 में आपकी बॉडी में बार बार आप इंसुलिन ज्यादा बढ़ती है तो वो धीरे धीरे रेजिस्टेंट होने लग जाती है. किसी भी चीज की अति हो, बॉडी स्टार्ट्स टू गेट रेजिस्टेंट टू इट. तो वही चीज है इसमें भी. आई थिंक यू हैव टू मेक श्योर कि आप जिस लाडा की स्टेज पर हैं, यू मेंटेन योर लेवल्स एंड एवरीथिंग वेल, एंड यू गेट योर C peptide डन every 6 months, I would say, for LADA patients, or at least once in a year, to understand कि मेरा कितना लाडा प्रोग्रेस हुआ है. धनवीर कह रहे हैं मेरा डॉक्टर मुझे कुछ कंफर्म नहीं कर रहा. अभी तक मैं 2017 में डायग्नोसिस था, तब मेरा C peptide 0.98 था और HbA1c 4 था. अब प्रेजेंट में मेरा C peptide लेवल 0.45 है. तो आपका C peptide काफी कम हो गया है, मतलब 0.98 से 0.45 हुआ है. और अभी मैं 3 टाइम टैबलेट और 1 टाइम लैंटस ले रहा हूँ, फिर भी HbA1c 9 है. तो धनवीर आपको आप ये क्लासिक केस हो गया एक तरह से लाडा का, क्योंकि आपका पहले 0.98 था, तो ऑलमोस्ट इंसुलिन प्रोडक्शन हाफ हो गया है पहले से, और आपका HbA1c डबल हो गया है. आपका 4 था, आपका HbA1c 9 हो गया है. तो इंसुलिन प्रोडक्शन हाफ हो गया, HbA1c डबल हो गया. तो आपको अभी खाने से पहले मेरे हिसाब से इंसुलिन लगना चाहिए. आप चेक करें अपनी शुगर, डॉक्टर के पास जाएं और देखें कि अगर आप लैंटस और टैबलेट से नहीं हो रहा है तो आपको खाने से पहले इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है. HbA1c 9 है तो आप बहुत क्लोज हैं DKA के, मतलब 9 से 10 उससे ऊपर हुआ तो आप ज्यादा गंभीर प्रॉब्लम में आ सकते हैं. तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए फटाफट और बोलिए उनको कि क्या मुझे इंसुलिन मिक्सटार्ड या फिर दूसरी इंसुलिन या फिर एक्ट्रापिड या कोई और इंसुलिन खाने से पहले लेनी है कि नहीं. ये ऐसे सीन्स में, सॉरी, ऐसे सिचुएशंस में सेकंड ओपिनियन लेना कोई बुरी बात नहीं है. कभी भी अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई ट्रीटमेंट, क्योंकि आपको पता है आप अपने कंडीशन के साथ दिन भर दिन रह रहे हैं और आपको डॉक्टर को मिलने को सिर्फ 2 या 3 महीने में 10-15 मिनट का टाइम लगता है, तो आपको ज्यादा पता है कि ट्रीटमेंट चल रहा है, नहीं चल रहा है, डे टू डे आपको कैसा महसूस हो रहा है अपने बॉडी के साथ, शुगर फ्लक्चुएशंस के साथ. तो अगर आपको लगता है जरूरत है ट्रीटमेंट चेंज की और आपके डॉक्टर हाँ नहीं कह रहे, तो सेकंड ओपिनियन लेने में कोई बुराई नहीं है. आप डेफिनेटली स्पीक टू समबडी, किसी से बात करिए और किसी एंडो को दिखाइए स्पेसिफिकली. अगर आप किसी डायबिटोलॉजिस्ट या किसी फैमिली डॉक्टर के पास जा रहे हैं अभी, तो किसी एंडो को दिखा के आप एक बार अपना ट्रीटमेंट थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए. कंप्लीट चेंज तो नहीं होगा, बट एडजस्टमेंट डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा इमीडिएटली. ये डेफिनेटली लाडा है, क्योंकि आपका 14 आपका C peptide लेवल कम होता जा रहा है टाइम के साथ, राइट? तो ये, और आपकी उम्र कितनी है, तो ये डेफिनेटली एक लाडा का केस लग रहा है मुझे. आपका C peptide अभी भी T1 की रेंज में नहीं है और ये एक नॉर्मल से कम है.
तो कभी भी लाडा में यही होता है कि आप जितना एक नॉर्मल बंदा इंसुलिन बना रहे हो आप उतनी नहीं बना रहे हो, जितना एक T1 बना रहे हो आप उतनी कम भी नहीं बना रहे हो, आप कहीं बीच में हो दोनों के। तो आप अभी वहीं पर हो, स्टेज पर हो, आप बीच में हो। तो आपको या तो आपका डॉक्टर आपकी टैबलेट बढ़ाएगा, आप कितना टैबलेट ले रहे हो, या वो आपकी इंसुलिन एडजस्ट करेगा। तो आपको दोनों में से एक काम करना है, क्योंकि 9 बहुत ज्यादा है। आप कोशिश करके इसको 6 पे लाइए, इसको मेंटेन कीजिए ताकि आपका प्रोग्रेस ना हो उतनी जल्दी डायबिटीज। करेक्ट, करेक्ट। और डेफिनेटली आप इनके केस में तो यही लग रहा है कि फास्ट एक्टिंग इंसुलिन और कार्ब काउंटिंग की डेफिनेटली जरूरत हो सकती है ये टाइम पे। हाँ, आप बट या अपना योर खाने पे डॉक्टर ध्यान विल टेल। दीजिए। आप हाँ करेक्ट, क्योंकि आप खाने से पहले सिर्फ टैबलेट ले रहे हैं, राइट, और वन टाइम लैंटस ले रहे हैं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, किसी दिन आपने खाने में ज्यादा रोटी ले लिया, ज्यादा कार्ब्स ले लिया। ये भी बहुत बहुत जरूरी जानकारी है जो बाकी लोग भी सुन रहे हैं, कि आपको अपना एक डिसिप्लिन में आना पड़ता है जब आप एक लाडा में आ गए, राइट। मैंने एक बार 4 रोटी खा ली, एक बार 2 रोटी खा ली, तो अगर मैं इंसुलिन नहीं ले रहा, मेरी शुगर तो फ्लक्चुएट करेगी अगर ओरल मेडिसिन सेम भी है तो, राइट। तो इस चीज का बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था ये मैनेज करना अपना खाना, जब मैं सिर्फ पिल पर था और जब मेरे को पता लग गया था, क्योंकि आई वाज लाइक कि यार मतलब इससे अच्छा इंसुलिन दे दो, मैं मतलब एडजस्ट तो कर पाऊँ, राइट। क्योंकि कई बार आपको समझ नहीं आता है लाडा में बहुत टाइम तक कि हो क्या रहा है मेरी बॉडी के साथ, राइट। और जैसे रोहन ने मेंशन किया, अलग अलग स्टेजेस आते हैं लाडा के, जो ऐसे शायद T2 और T1 में नहीं आते, बिकॉज आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हो टुवर्ड्स योर इंसुलिन लेवल्स गोइंग टू कंप्लीट जीरो। तो हर स्टेज में अलग अलग प्रॉब्लम्स आना लाजमी है, एंड लाइक यू नीड टू एडजस्ट योर फूड हैबिट्स एंड योर वर्कआउट हैबिट्स एंड मेंटेन योर शुगर लेवल्स एट द सेम टाइम। तो इट्स वो बैलेंस थोड़ा लाडा में बैलेंस करना इज वेरी वेरी क्रूशल, वेरी डिफिकल्ट बट वेरी क्रूशल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो या Correct. We have a comment. Kajitani Singh, I got diagnosed in March 2022. GAT65 value was plus 40. I haven't done C peptide. तो निष्ठा, आपको याद है गैट का नॉर्मल लेवल कितना होता है? आई थिंक इफ समवन कैन पुट दैट इन द चैट बॉक्स। मैंने गैट कराया नहीं है, तो मैंने सिर्फ सी पेप्टाइड कराया। आपने तो गैड आप नहीं एक कराया बार था? चेक कीजिए कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल से कम है। और एक बार सी पेप्टाइड आप करा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपको सी There's no पेप्टाइड harm. से Yeah. क्लैरिटी मिल जाती है कि आपकी बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है। So I just pulled out my report, and negative is less than 17 IU ml, and मेरा 641 था, तो that was definitely positive. 17 के ऊपर, 17 के ऊपर anything GAD is बन I'm talking about IU ml. So या yeah. करेक्ट। आई थिंक डेफिनेटली अगर आपका ज्यादा है तो डेफिनेटली यू शुड गेट एक बार सी पेप्टाइड भी करा लेना चाहिए। Yes, या for sure, for sure. uh, रोहन, आप अपना फिलहाल जो मैनेजमेंट है आपका, उसमें एक्सरसाइज कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए फिलहाल? एक चीज क्या होती है कि लाडा के साथ ना आपको, आप आधे टाइप 1 हो, मैं ऐसे ऐसे बोलूंगा उस स्टेज पे, राइट। एंड आपको भी उन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा जो एक टाइप 1 ख्याल रखता है। आप, क्योंकि बहुत बार लाडा में क्या होता है, लोग उसको टाइप 2 मान लेते हैं, और जो जो ज्यादा टाइप 2 की तरफ जाते हैं। मैं ये बोलता हूँ आप ज्यादा टाइप 1 की तरफ जाओ अगर आप बीच में हो तो। करेक्ट, वो करेक्ट। क्योंकि आप ऊपर नहीं जा रहे हो, आप लाडा हो, तो आपकी इंसुलिन प्रोडक्शन एक्स्ट्रा नहीं होगा कि आप उठे और एक दिन इंसुलिन प्रोडक्शन आधी से 100% हो गया, राइट। आप नीचे जाओगे, आप ऊपर नहीं जाओगे। तो ऊपर की केसेस हैं, आप जा सकते हो, बहुत रेयर केसेस है। अगर आपका लाडा बहुत, आपका वेट ज्यादा है ना, आपने वेट बहुत रिड्यूस करा है। आई थिंक someone was mentioning in the chat that they run long distances, and हाँ देवाशीष बोल रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटी has helped me to control his type 2। करेक्ट, फिजिकल एक्टिविटी आपकी टाइप 2, लाडा, टाइप 1 तीनों में हेल्प करती है। एंड बेसिकली यू हैव टू मेक श्योर आप मिनिमम 10,000 स्टेप्स वॉक करें, एंड आप एक एक्टिविटी भी करें उसके अलावा दिन में। कैन बी एनीथिंग, कैन बी आप जिम जा सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एथलेटिक्स कर सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं। तो 1 hour ऑफ एक्टिविटी एवरी डे प्लस 10,000 स्टेप्स, आई थिंक दैट इज द वे टू गो।
which will really help you in making sure कि आपकी बॉडी में जितनी इंसुलिन बन रही है वो सेंसिटिव रहे, राइट. वंस यू गेन सम फैट और वंस यू डोंट एक्सरसाइज, राइट, जो आपकी बॉडी में इंसुलिन बन रही है उसकी सेंसिटिविटी कम होती रहती है. तो बहुत बार मैंने देखा है कि टाइप 2 या फिर टाइप 1, अगर हम भी एक्सटर्नल इंसुलिन ले रहे हैं, ठीक है, हम भी अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम उसके भी रेजिस्टेंट हो सकते हैं. इवन टाइप 1 कैन गेट रेजिस्टेंट टू इंसुलिन. तो बहुत जरूरी है, और ये देखा गया है कि खाने के बाद आप वॉक करें तो उसके बाद आपके लेवल्स अच्छे रहते हैं, राइट. सो मेक श्योर यू डू दैट. You want to add anything, Nishna? No. I was just reading Runal's comment. Basically, LADA turns into type 1 eventually. Yes, Runal, it basically does, but बहुत slowly हो सकता है. And जैसे रोहन ने पहले भी mention किया है, आप वो stages खींच सकते हैं अगर आप जल्दी पकड़ लें, अगर आप सही डाइट और सही रूटीन फॉलो करें एंड एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू रखें, तो आप वो लाडा प्रोग्रेसिंग इनटू T1 को काफी पुल कर सकते हैं. बट यस, इवेंचुअलिटी इज दैट ओनली कि आप your body will stop making insulin because it's slow onset of T1 basically. एक सवाल है हमारे पास प्रतिभा का कि 12 साल के बच्चों को कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी एक्टिविटी काफी. आई थिंक किड्स आर एक्टिव, मतलब जितना मैंने देखा है. तो आप उसको बोलिए कि आप वो खेलने जाए रोज शाम को, एंड दैट इज मोर देन एनफ. लाइक अगर वो शाम को जाके खेले और अगर योगा करे थोड़ा बहुत, अगर उसका मन है तो, देन आई थिंक दैट विल बी ग्रेट. एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक काफी यहाँ पर लाडा भी है, मृणाल है, एंड तनवीर है, काजेटन है. तो कोई आपका सवाल है जो हम किसी चीज को ले आगे बढ़े? अक्षय का कोई सवाल तो बेझिझक पूछिए. आप निष्ठा, आप कितनी टाइम डॉक्टर को दिखाते थे? कितनी बारी आप डॉक्टर को दिखाते थे ड्यूरिंग, जब आपको, अब 6 महीने में एक बार जाते थे या साल में एक बार जाते थे? जो आपने बोला कि आपको टाइम नहीं मिलता था ज्यादा, वो कितना टाइम मिलता था आपको एक साल? मिसडायग्नोसिस जब मेरा T2 का हुआ था, तो मैं आई थिंक 3 महीने में एक बार जाने की कोशिश जरूर करती थी, बट कभी कभी 6 महीने हो जाते थे. एंड टुवर्ड्स द लेटर, आई मीन स्टार्टिंग में तो मैं डेफिनेटली एकदम डिलीजेंटली जाती थी, बट मुझे ऐसा लगने लगा था मैं डॉक्टर वाज गेटिंग डिसअपॉइंटेड इन मी बिकॉज मेरा शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, और मुझे बहुत देर से पता चला कि वो मेरी गलती नहीं थी. तो मैं बीच में लास्ट 3-4 years ऑफ माई T2 लाइफ में बहुत इरेगुलरली जाने लगी थी. शायद साल में एक बार कभी चली जाती थी, वो भी क्योंकि मुझे किसी घर वाले ने पुश किया होता था कि बहन चेक कर ले अपना शुगर, एक साल में एक बार तो कर ही ले अपना शुगर चेक. एंड उसके बाद मैं जाती थी डर डर के, एंड वेटिंग लाइन वगैरह 2 घंटे निकाल के मुझे 10 मिनट मिलते थे डॉक्टर के साथ. एंड या दैट वाज इट. लाइक समटाइम्स मैं उससे भी लाइक साल में एक बार या साल में 2 बार 10-20 मिनट के लिए मिल लेती थी डॉक्टर से, एंड दैट वाज इट. बट आफ्टर आई चेंज्ड माय डॉक्टर, तो इट गॉट अ लिटिल बेटर. आपने उस डॉक्टर को जाके बताया कि भाई तूने मेरा मिस डायग्नोसिस करा था? नहीं, पर एक बार आई थिंक मेरे हस्बैंड ऑलमोस्ट दिख गए थे मेरे हस्बैंड को, तो मेरे हस्बैंड बस जाके आज तो मैं बता के छोड़ो यार, नहीं कोई जरूरत नहीं है जाने की. बट आई डिड नॉट. इट्स इम्पोर्टेंट, मतलब उनको भी पता लगे कि कल को किसी और पेशेंट के साथ ना ऐसा कर दें, राइट? या आई थिंक दिस मैंने तो बोला था, ही वाजंट टू प्लीज, मतलब वो बोल रहे थे कि तुम्हारी गलती थी. ही वाज स्टिल विद दैट ओपिनियन, राइट? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज सम माइंडसेट, बट दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू. And this kind of brings me to the point about जो स्टिग्मा का मैं स्टार्टिंग में बात कर रही थी. जब आपने मुझे पूछा, राइट, कि आप गए क्यों नहीं डॉक्टर के पास, बताया क्यों नहीं, मुझे आई थिंक मेरा पहला रिएक्शन वाज मुझे वो वापस रिलिव नहीं करना था, क्योंकि इतना लास्ट फ्यू इयर्स में इतना स्टिग्मेटाइज हो गया था मेरे लिए, और मैं अपने आप को इतना ब्लेम करने लगी थी दैट इट स्टार्टेड टेकिंग अ टोल ऑन माय मेंटल हेल्थ, कि शायद आई एम नॉट गुड इनफ. आई एम नॉट गुड इनफ. माई फादर हु इज T2, वो भी वही काम कर रहे थे, वही चीजें खा रहे थे मेरे जैसे, वही टाइप का वर्कआउट कर रहे थे, एंड हिज लेवल्स वर परफेक्ट एंड माइन वर्ंट. एंड वही आई थिंक वो लाडा में ना, बिकॉज मिसडायग्नोसिस 99%, और ऐसा हमें लगता है कि इंडिया में ही सिर्फ मिसडायग्नोसिस होता है. मैं रेडिट वगैरह पे पढ़ती हूँ, आई एम पार्ट ऑफ लाइक सम इंटरनेशनल ग्रुप्स ऑल्सो. 99% ऑफ द टाइम लाडा विल बी मिसडायग्नोस्ड एज टाइप 2. और ये जो मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है, जब तक आपका सही डायग्नोसिस आए
या तो खुद के रिसर्च से या डॉक्टर चेंज से या आप डीके में पहुंच जाओ, उसके बाद आपको जब पता चलता है कि आपका सही डायग्नोसिस है, वो जो मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट है वो इतना सीवियर होता है दैट कभी कभी वो स्टिग्मा में से बाहर निकलना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. व्हाट डू यू थिंक रोहन, Correct. लाइक दैट मेंटल Yeah, हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ लाडा आई correct. थिंक इज Yeah. सो I was बैड, so राइट? frustrated with लाडा कि मैं कहा यार मेरे को या तो टाइप 2 कर दो या तो टाइप 1 कर दो, मेरी चुप रहे, मेरे को ऐसा बीच में मत लटका के रखो. I was so frustrated. And I think when I joined this community, Blue Circle Diabetes Foundation, tab I met with a lot of people. I met with other LADA persons as well, and I got to learn a lot of stuff in terms of management. And जो मेरा डीके का बाद इंसुलिन के बाद भी जो प्रॉब्लम आ रहा था, आई डिडंट डू कार्ब काउंटिंग, मैं कार्ब काउंटिंग नहीं करता था, विच इज वेरी एसेंशियल. जो भी वेरी लोग सुन एसेंशियल. रहे हैं, आपको कार्ब काउंटिंग एसेंशियल है आपको मैनेजमेंट के लिए, जो आपको डॉक्टर्स नहीं बताते. And yeah, and you talked about mental health, right? So we had started this mental health helpline, and we started this in COVID since a lot of people wanted to reach out. काफी Yeah. mental health issues आ रहे थे, and we trained around 11 people living with diabetes, with different type of diabetes, LADA, type 2, type 1, speaking over 9 different languages. और ये हेल्पलाइन का मैं लिंक डालता हूँ चैट में. एंड आप में से किसी को कोई भी बात करनी है इन टर्म्स ऑफ योर डायग्नोसिस, या अगर आपको सही डायग्नोसिस मिल रहा और यू नीड सपोर्ट, आई थिंक दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू गो टू, एंड यू कैन जस्ट चैट विद एनीवन. एंड दीज आर ऑल वॉलंटियर्स, तो आप उनका स्लॉट बुक कर सकते हैं. दे टेक टाइम फ्रॉम देयर बिजी स्केड्यूल, and you can go and talk to them, and that does make you feel better. Yeah. And Nishta, how was your, when did you join Blue Circle Diabetes, and आपको क्या, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी बिकॉज आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, और मैं ना थक गई थी ऐसा सब मैनेज वगैरह करके. एंड एक बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा ना मैंने बहुत लोगों को बताया भी नहीं था कि मुझे डायबिटीज है. एक दिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई और मैंने इतना लंबा लेटर लिखा और मैंने फेसबुक पे डाल दिया कि हाँ मुझे डायबिटीज है, अब क्या करोगे तुम लोग. लाइक आई एम लिविंग विद डायबिटीज एंड मेरी सही डायग्नोसिस हो गई है आफ्टर इतने इयर्स ऑफ मिस डायग्नोसिस, और मैं वापस ट्राई कर रही हूँ अपना लाइफ लीड करने का. तो प्लीज मेरे पास मत आइए ये सवाल लेकर कि आप ये क्यों नहीं खा रहे हैं, आप वो क्यों नहीं खा रहे हैं, आपका वेट क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है, कम से ज्यादा कैसे हो गया, ज्यादा से कम कैसे हो गया, ये सब क्यों हो रहा है आपके साथ. एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों का रिएक्शन काफी पॉजिटिव था. मैंने रियलाइज नहीं किया था कि इतना पॉजिटिव रिएक्शन हो सकता है. मेरे एक स्कूल टीचर है जो नूपुर को जानते हैं, एंड वो उन्होंने मुझे अलग से मैसेज करके कहा कि नूपुर ये ग्रुप रन करती है, व्हाई डोंट यू जॉइन इन एंड जॉइन इन द कम्युनिटी एंड लाइक यू कैन आस्क क्वेश्चंस एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट एंड लर्न फ्रॉम इट एंड स्टफ लाइक दैट. और मैंने तभी आई थिंक 2021 में ज्वाइन किया था ब्लू सर्कल को. एंड आई बी ऑनेस्ट, इनिशियली मैं बहुत ओवरवेलम हो गई थी बिकॉज इतनी सारी चीजें हो रही थी. एंड मेरा नया नया डायग्नोसिस हुआ था, मेरे यहाँ पे 250 मेरा शुगर लेवल आता था, तो मैं बहुत खुश हो जाती थी कि हाँ अब तो कम हो गया थोड़ा सा. और फिर मैं ग्रुप पे आती थी और लोग कहते थे ओ माय गॉड, मैं आज मेरा 120 हो गया, मैं क्या गलत कर रहा हूँ या क्या गलत कर रही हूँ. तो इनिशियली मैं बहुत ओवरवेलम हो जाती थी. बट देन धीरे 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 करके जब मैं सबसे बात करने लगी एंड रियलाइज करने लगी कि बहुत सारे टाइप के लोग हैं, बहुत सारे टाइप की डायबिटीज है, एंड सब लोग अपना अपना लेवल खुद बनाते हैं, एंड यू मेक योर ओन journey of diabetes by yourself. And then I started getting involved a lot over here, and thanks to you and Snehal and Nupur. So that's when I think मुझे इतना लर्न करने को मिला है थ्रू ब्लू सर्कल दैट इट्स इनवैल्यूएबल है. मुझे कहीं और पढ़ के कहीं और कुछ करके नहीं आई थिंक मिलने वाला दैट था. लिव्ड एक्सपीरियंस जो आपको, जो जी चुका है लाडा से या जो टाइप 2 से टाइप 1 से, जो वो आपको चीजें बता पाएगा, राइट? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन या गूगल सर्च पे. And इट्स as a इनवैल्यूएबल. community support network as well. And Nishta has been very very active on our group. She keeps making video. उन्होंने अभी ultra human का भी बताया था, जो which many people found helpful. And she's a very active member, and thanks to you Nishta as well, because to paying it forward what you learned, right, to everyone, and then making sure Thank that you. we all manage diabetes together as a community. या जो भी Wonderful. अगर कोई देख रहा है एंड आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं और साइलेंटली पार्ट हो ग्रुप, लीव अ कमेंट कोई ना कोई पोस्ट पे एंड जस्ट बात करना चालू कर लीजिए. द एंड द पेइंग इट फॉरवर्ड बहुत बहुत हेल्पफुल होगा आप सबके लिए फॉर श्योर.
Great. Yes, and we have a lot of people जो आके पढ़ते हैं comments and slowly मतलब like you mentioned like they get overwhelmed, right? वो मैं भी हुआ था Yeah. सबसे पहले कि इतना information है, what to Yeah, understand, क्या what करें? not to understand, right? तो वही है that you focus on your health and आपको किस चीज की जरूरत है, and you can search for any topics. आप Yeah. Facebook पे आते हैं तो आप ऊपर जो सर्च बार है उसमें आप लाडा टाइप करेंगे तो आपको लाडा के सारे पोस्ट मिल जाएंगे, तो आप ऐसे करके आप सर्च करके भी बहुत सारी चीजें जान सकते हैं. एंड ग्रेट. एनी अदर क्वेश्चंस यहाँ पर? निष्ठा, एक और पॉइंट था, सीजीएम वर्सेस प्रिकिंग, राइट? Yeah. व्हेन डिड यू स्टार्ट टू यूज सीजीएम एंड हाउ डिड इट हेल्प? एंड जब आप सिर्फ ग्लूकोमीटर पे थी तब आप कैसे मैनेज कर रही थी? आई थिंक इनिशियली मुझे सीजीएम यूज करने को कहा था मेरे एंडो ने थ्रू अ प्रोग्राम दैट शी पुट मी इन. तो उन्होंने मुझे 1 महीने के लिए यूज करने को दिया था सीजीएम, बट मेरे पास रीडर नहीं था, तो मुझे उसका आइडिया नहीं था कि कितना हेल्पफुल है कितना नहीं है. 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे दे हैड शोन मी द ग्राफ जो लिब्रे प्रो से बनता है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया था. बट आई थिंक मैं ब्लू सर्कल पे जब पढ़ने लगी अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हैविंग सीजीएम, तब मैं आई थिंक 4 मंथ्स पहले मैंने आई थिंक सीजीएम खुद से यूज करना चालू किया था. एंड इनिशियली मैंने रीडर वगैरह खरीदा था और फिर मैं अल्ट्रा ह्यूमन यूज करने लगी. सॉरी. द थिंग इज, एक तो बिकॉज लाडा है इतना, टाइप 1 जैसे मुझे इतने हाइपोस नहीं होते हैं एंड इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बट इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू सी हाउ सर्टेन फूड इज अफेक्टिंग योर लेवल्स, हाउ मेनी स्पाइक्स यू आर हैविंग. रात में सोने के टाइम पे आपका कितना स्पाइक्स हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, पूरे दिन में आपका ग्राफ कैसा रह रहा है. आई थिंक इट्स बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट मोर देन एनीथिंग एल्स. ग्लूकोमीटर तो आई मीन इट कांट टेल यू व्हाट हैपेंस बिटवीन टू प्रिक्स, राइट? कि आपने अभी प्रिक किया और आपने 3 बजे प्रिक किया, तो उस बीच में आपके बॉडी के साथ क्या हो रहा है, यू हैव नो आइडिया. तो मुझे ऐसा लगता है कि अपार्ट फ्रॉम द फ्यू ब्रेक्स दैट आई टेक, एक एक दो दो दिन के बिटवीन सीजीएम्स, अब विद इन 3 मंथ्स मैं रह नहीं सकती अभी सीजीएम के बिना, मुझे ऐसा लगता है. व्हाट डू यू थिंक, रोहन? लाइक एंड करेक्ट. एंड फॉर सम पीपल इट्स नॉट अफोर्डेबल, राइट? काफी लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे सीजीएम, तो उनको मैं सिर्फ ये एडवाइस दूंगा कि आप सिर्फ एक बार सीजीएम यूज करिए 3 महीने में या 6 महीने में. आपको अपना, क्योंकि शुरू में मैं ऐसे यूज करता था जब लिब्रे प्रो आया था, एंड व्हेन आई यूज इट फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, मैं 2 महीने में एक बार यूज करता था या मैं 4 महीने में एक बार यूज करता था उस टाइम पर, कुछ ताकि मुझे पता लग जाए कि हाउ माय बॉडी इज रिएक्टिंग टू डिफरेंट फूड्स, और ये लाडा में बहुत जरूरी है. तो बहुत. आप भी ये कोशिश कीजिए कि आप एटलीस्ट 3 महीने में एक सेंसर तो यूज करें, एंड देयर आर डिफरेंट फीचर्स एज वेल जो हैं. तो आप ये ट्राई करके देखिए, और वो आप लिखिए पूरा उस टाइम पे कि मैंने क्या खाया, कितनी शुगर बढ़ी है, क्या खाया. व्हेन वंस यू राइट दैट डाउन, दैट इन्फॉर्मेशन विल रियली हेल्प यू गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये खाना है, मैंने इस टाइम खाया, ये इस टाइम खाया, इतना यूनिट लगाया. एंड एक चीज और है, जो लोग लैंटस और पिल्स पर हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू बेजल टेस्टिंग. आई जस्ट पुट द लिंक इन द चैट. आपको ये देखना आएगा कि आप जो बेजल ले रहे हैं वो काम कर रहा है कि नहीं, स्पेशली फॉर लाडा जो पूरा बेजल पे डिपेंडेंट है आपका मोस्टली. तो आपको अपना बेजल टेस्टिंग करना ही करना है हर 2 महीने में. ग्रेट. एनी अदर कमेंट्स? एंड आई लव टू नो, अगर आप में जितने भी लोग सुन रहे हैं आज जो लाडा फेस कर रहे हैं, you can reach out to Nishta or me if you have any questions. And yeah, wonderful chatting with you, everyone. And yeah, any last word, Nishta? नो, आई जस्ट इनफैक्ट मुझे क्वेश्चन था रोहन, बिकॉज बहुत टाइम बाद आपसे बात हुई है मेरी. जब आपको किसी को एक्सप्लेन करना होता है लाडा, किसी ले पर्सन को, क्योंकि जैसे आपने कहा आप टाइप 1 भी नहीं है एंड आप टाइप 2 भी नहीं है, पर आपको दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स है लाडा के. तो एंड आपको लाडा, आई मीन आप ओल्ड प्लेयर है लाडा के इसमें, ब्लू सर्कल में. सो व्हाट, हाउ डू यू एक्सप्लेन लाडा टू समबडी? बिकॉज आई हैव बीन लिविंग विद लाडा फॉर 2+ years नाउ. आई स्टिल स्ट्रगल कि मैं एक्सप्लेन कैसे करूं किसी को कि ये क्या होता है. तो व्हाट इज योर Yeah, टिप you फॉर just say दैट? that the glass is half full. मतलब आप बोले एक नॉर्मल बंदा है, इसका इंसुलिन का ग्लास पूरा भरा हुआ है, ठीक है. टाइप 2 है, उसका इंसुलिन का ग्लास पूरा भरा हुआ है, लेकिन उसको समझ, वो पानी की वो खत्म हो गई है.
एफिशिएंसी खत्म हो गई है, T1 का ग्लास पूरा खाली है, लाडा का ग्लास आधा भरा हुआ है. So that's how you explain लाडा to everyone. वो धूप में रख दिया बस, वो एवेपोरेट होते जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके। आधा आधा भर गया है, अब आपको अभी आधा है, कल पता नहीं कितना हो. Right? और So वही this is how लाड़ा में you. बस वही है, सम डेज यू कैन से ग्लास इज हाफ फुल, सम डेज यू विल फील लाइक ग्लास इज हाफ एम्प्टी, but the struggle goes That's true. on with mental health. But like Rohan mentioned, you can just like speak to one of the buddies on Blue Circle and turn half empty into half full, hopefully soon. Senthil says, Definitely. I just say type 1, just got it late because I'm lucky. Wonderful, Senthil. Great Yeah, attitude, lucky sir. का तो I don't know how to feel about it, Rohan. I think slightly like sensitive-ish question. आपको क्या लगता है कि अगर आपको लगता है ना, जैसे आप कह रहे थे कि भगवान ने मुझे शायद काश टाइप 2 या टाइप 1 ही बनाया होता. How do you feel about getting LADA and then type 1 at this age If you rather get than younger? misdiagnosed, right, that's a lot of struggle on your mental health and your physical health. क्योंकि आपको उस टाइम पे इतना डाउट करते हो ना आप अपने आप को, जैसे आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई हो क्या रहा है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, राइट. सो दैट टाइम आई थिंक यू फील लाइक कि यार इससे अच्छा तो टाइप 2 या टाइप 1 ही हो जाता, करेक्ट, ताकि मैं मैनेज तो कर पाता. एसेंशियल चीज है, आपको टाइप 1 है, टाइप 1.5 है, 2 है, मोडी है, कुछ भी है, योर शुगर शुड बी इन रेंज. बस एंड ऑफ द डे आप Everything नॉर्मल else हो, आप is टाइप 1 irrelevant. हो, आप कुछ भी हो, आपको अपनी बॉडी की शुगर रेंज में रखनी है. यू डोंट वांट टू डील विद कॉम्प्लिकेशंस. आप कैसे भी करो, गोली खा के करो, इंसुलिन लेके करो, दौड़ के करो, भाग के करो, आप रेंज में रखना है आपको. So great. Great So on that summary. note, we'll just say goodbye to everyone. This was a wonderful chat, and hope to see you guys next week, same time. Bye, everyone.